and welcome to Government Crackers. So talking about the FCAT examination, अगर मैं last 60 days की preparation के लिए बोलूँ FCAT की, तो FCAT पहले तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है. is an examination which is very easy to crack and anybody can crack the examination. The very first thing that you need to do is, अगर आपने अभी तक नहीं किया है और कर भी लिया तो once again I would suggest you कि आप एक बार पहले syllabus अपने सामने रखिए. Make the section wise division. What is reasoning का section, current affairs का section, English का section and maths का section. Syllabus wise रखिए. Then tick the points which are your strong points. उसको आप tick कर लीजिए. Then cross the points जो आपके weak points हो. Now last 60 days में exactly आपको करना क्या है? For the period of first 15 to 20 days, you have to emphasize on your weak points जो आपने mark out खुद से करे हैं, because that is your self assessment and there is no better judge than the self assessment that you have done. So the first part जो आपने self assessment कर लिया. Now अब FCAT एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि फॉर एनी ऑफ द सेक्शंस अगर आप स्कोर एक एवरेज मार्क्स नहीं भी स्कोर करते हैं देन ऑल्सो यू क्लियर द एग्जामिनेशन अगर आपने कट ऑफ क्वालिफाई करा है. सो द वेरी बेस्ट थिंग अबाउट दिस पेपर इज दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉर selection. All right, now here you can choose any of the section depending upon your interest कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है. It may be reasoning section also, it may be English, it may be maths, it may be general knowledge. Now there is lot of chaos related to general knowledge कि हमें current affairs cover करना है, but हार्डली देयर आर क्वेश्चंस रिलेटेड टू करंट अफेयर्स. जैसे अभी लास्ट टाइम जो FCAT एग्जामिनेशन में हुआ था मोस्ट वॉज स्टैटिक जीके. सो स्टैटिक जीके इज वन पर्टिकुलर पोर्शन जो बिल्कुल पेट और आई वुड से इज द वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स फॉर FCAT एग्जामिनेशन. सो दिस यू कैन डू ऑन योर ओन ऑल्सो, यू कैन प्रिपेयर ऑन योर ओन ऑल्सो. For that you need to know the certain topics, certain areas which are very favorite, very pet. For example, books and authors, there will be wildlife sanctuaries, national parks, there may be sports related current affairs, static current affairs. There will be certain जो आपके history related static current affairs which are very favorite topic like Indus Valley civilization. So these terminologies, these static GK are one of the favorite topics, not forgetting the defense also. So these areas are highly susceptible because they have very high rating for coming into the examination. Coming to the English section, you have set pattern, set number of question papers. Yes, there will be a paragraph जिससे आपको questions आएंगे. There will be antonyms, there will be synonyms, there will be errors, there will be spelling mistake sentences, there will be idiom and phrases at times also. तो बहुत set pattern होता है depending upon. यहाँ पे this paper actually does not need any strategy. यहाँ पे आपको बस अपने strong points को करना है. बेस्ट पार्ट ये, एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं you get 3 marks और एक क्वेश्चन गलत करते हैं -1 is deducted. तो यहाँ पे राइट पार्ट क्या होगा, आपको पता करना है that which sections after attempting you can score near about 160 plus, जो एक सेफ स्कोर होगा आपके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए. बट यहाँ पे हमें सिर्फ एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं करना है बल्कि इतना स्कोर करना है सो दैट वी कैन क्लियर द मेरिट ऑल. तो उस केस में हमें क्या करना है, मेरिट के लिए हमें क्या करना है, हमें स्कोर करना है नियर अबाउट 180 प्लस एंड आफ्टर दैट वी हैव टू नॉट स्टॉप द प्रिपरेशन टिल FCAT. बट उसके आगे FSBs के लिए भी उतनी ही मेहनत और शिद्दत के साथ मैं कहूंगी प्रिपेयर करना है. ठीक है, तो FCAT की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है. रीजनिंग इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन और क्राइटेरिया फॉर क्लियरिंग दिस FCAT एग्जामिनेशन, क्योंकि इजी भी होता है, समझ में भी आता है, इंटरेस्टिंग भी होता है कि हम उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं. तो बहुत आसान सेक्शन होता है. द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज द राइट स्टडी मटेरियल, राइट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया. अगर आपको पता है कि ये डॉट रिलेटेड फिगर्स आते हैं तो आपको उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस करनी है. डिफिकल्टी लेवल उसी में रेज करना है कि अगर एक डॉट के क्वेश्चंस आते हैं यू नीड टू मेक 2 डॉट्स और उसके बाद आप खुद उन मटेरियल से प्रैक्टिस करें. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट राइट अमाउंट ऑफ मटेरियल एंड द डायरेक्शन इन विच यू आर स्टडिंग. क्योंकि अब रीजनिंग बहुत वाइड लेवल पे होता है, लेकिन आपको पढ़ना है उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को जो एक्चुअली पहले एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं.
सेकेंड कमिंग डाउन टू इंग्लिश, इंग्लिश में अगर आप बहुत अच्छा, मैं कहूंगी अगर आप वोकैबुलरी को छोड़ देते हैं, वोकैब सेक्शन विच इज डिफिकल्ट एट टाइम्स, नो हार्म इन दैट, बिकॉज वोकैब के अलावा भी यू हैव एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अगर आप कर लेते हैं तो, क्योंकि कोई क्राइटेरिया नहीं होता क्वालिफाइंग करने का हर सेक्शन को, तो अगर आप 25 जैसे क्वेश्चंस आते हैं, 8 क्वेश्चंस आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स के हो गए, तो 16-17 क्वेश्चंस भी बाकी आपके हाथ में होते हैं, अगर आप वहां पे अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, no harm in that. Next is about the mathematics section which most of the persons are actually afraid for. mathematics और lengthy section भी होता है, तो maths में कहूंगी आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करिए। और मैथ्स में देयर आर अगेन सेट ऑफ क्वेश्चंस जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, ट्रेन रिलेटेड, बोट स्पीड, बोट स्ट्रीम, तो ये क्वेश्चन शॉर्ट है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। नाउ द डिफिकल्टी इज बीन रेज्ड बाय कि इनमें 1 से 2 कंडीशंस को जो है अब अप्लाई कर दिया गया है, सो यू नीड टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद आपको प्रॉपर्ली उन चीज को सॉल्व करना है। नाउ द वेरी फर्स्ट स्ट्रैटेजी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग इज, सबसे पहले रिस्ट्रिक्ट करें अपने आप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल ग्रुप्स पे, सोशल कल्चर्स पे। होता क्या है कि इसकी वजह से जब आप डिस्कस करते हैं बहुत ज्यादा एक चीज के बारे में तो एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। उस नेगेटिविटी को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अगर आपको पता चला आपके फ्रेंड ने बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर लिया, तो दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी, यू विल बी समवॉट लिटिल बिट डिप्रेस्ड और नर्वस कि आपने तो अभी स्टार्ट नहीं करा या एक ही टॉपिक कवर करा है। तो लास्ट 60 days एक्चुअली यू नीड टू बी सराउंडेड बाय पीपल हु एक्चुअली कैन मोटिवेट यू, जो आपको बोल सकते हैं नहीं यस यू कैन डू इट, जो भी आपने करा बहुत अच्छा करा। यू नीड सच काइंड ऑफ पीपल। ऑल्सो जितना ज्यादा आप अपने आप को लिमिट करके खुद पे टाइम देंगे और अपनी पढ़ाई पे टाइम देंगे, दैट विल बी समवॉट वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये करनी है विच आई पर्सनली बिलीव एंड विच एक्चुअली वर्क्स आउट। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। Second thing is this, do not run behind current affairs in the crowd, because current affairs is not the only section which decides or which is the only factor to clear your FCAT examination even to score above 180. Only current affairs is not the section, you have other sections also. current affairs के सिर्फ 25 questions, that is 75 marks के आते हैं। leaving 75 you have 225 marks in your hand, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? So don't run behind that क्राउड, आप भीड़ में मत भागिए, स्टैंड आउट लाइक अ लीडर। ठीक है, नेक्स्ट इज जो भी आपके सेक्शन है, जैसे मैंने बोला फर्स्ट 60 डेज अगर मैं बात करूं, सो उसमें से फर्स्ट 15 to 20 डेज एम्फसाइज ऑन व्हाट आर द वीक पॉइंट्स, ताकि अब आप उनको टाइम दे पाए, बिकॉज लास्ट में आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे काम करना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपके ऑलरेडी आपके पास है, यू जस्ट नीड टू पॉलिश देम इन द लास्ट फ्यू डेज, जो कि आई थिंक 1.5 मंथ्स जो है नियर अबाउट वो सही रहेंगे। तो इस तरह से आपको अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान आउट करना होगा, एक शेड्यूल बनाना होगा खुद के लिए, और इस तरह से आपको उसको एग्जीक्यूट करना होगा। सो आई होप दिस हैज समवॉट हेल्प्ड यू आउट एंड लिटिल बिट ऑफ encouraged you also or gave you motivation also. So for current affairs I'll be bringing up series for current affairs also, and probably for the study material, if you don't have the right study material, so we have a compilation of very good study material. So for the study material आपके पास various books होंगे, but you know book में काफ़ी ज़्यादा vast syllabus होता है, चीज़ें एक तरीके से limited नहीं होती, फिर notes बनाने में बहुत ज़्यादा time चला जाता है। So we are working professionals also, we are students also, we might not have this much of time. So here we have prepared a course जो सिर्फ FCAT oriented होगा, जिसमें बिल्कुल specific material होगा। The material is limited, but from every single line you can expect a question. So this is a high level material. We have material for individual courses for FCAT as well. So EKT FCAT दोनों का ही material आपको यहाँ पे available मिलेगा. You can download the government Crackers app from Google Play Store, or you can easily get it on Apple Store. Organization code WMRKE है, इसको आप डाउनलोड करके अगर ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछा जाए तो आप इसको डाल सकते हैं। And here you will be getting extensive amount of practice material which no other institution provides you. So with video lectures, with notes, with personal guidance, with strategy, you get extensive practice material for each of the sections, as well as mock test also included in that. So there's a lot more that are providing to you, and I'll see you in the next session, and hope you may clear the examination this year and get your uniform soon. So I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind.
So thank you for watching this particular session. Make sure you like, share and subscribe to the YouTube channel of Government Crackers, and for further updates don't forget to check these videos for detailed notification and updates.